favorite part of hope everyone is doing fine. मुझे माइक खरीद लेना चाहिए. So welcome back to this channel. Hi everyone, कैसे हैं आप सब? And I hope everyone is doing fine. And आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं my favorite topic, that is being creative. So I'm the person who is the most creative in all the groups, whether it's my friend circle group or रिश्तेदारों का group. मतलब I am the खिचड़ी of everything. ये मैं हमेशा कहती हूँ. I'm the girl who like art, who like painting, who like gardening, who like lifestyle and home decor and makeup and skincare. I am the girl who is the package of everything. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो what are you waiting for? Come, let's enjoy this journey. So आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी creative journey, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी how I started, how it went through और किस तरह से क्या चीज़ें हुई. So आज you are going to get a glimpse of everything that I had in my art journey and how I grew up from just a normal girl to an artist that I feel like I am. How pandemic helped me to get more creative and where I get the ideas from. सारी चीज़ों के साथ साथ you are also going to see that I got my first commissioned artwork. Commissioned artwork is basically when you get paid for something you create. So this commissioned artwork is about a government organization. लेकिन with due respect to the organization I'm working with, I'm not going to reveal anything about it. I'm just going to tell you just a gist. It's a woman empowerment kind of organization जो कि government affiliated है और इनका एक बहुत बड़ा सा फंक्शन होने वाला है जहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं and a lot of chief guests and all. So उसके लिए I need to prepare a feedback book. Though craft is not more of my thing, but I take this as a challenge and I'm going to keep you guys with me and help me out throughout. So welcome to the channel and the process where I create my first commission artwork. We are somewhat going for these kind of look जो कि बहुत ही rustic and vintage है. सबसे पहले आई एम गोइंग टू हैव अ फाइल फॉर दैट. पहले आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ डायरी बट देन द क्लाइंट सेड दैट दे डोंट वांट डायरी और उनको सब कुछ हैंडमेड चाहिए एंड दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड दिस फाइल टू बी आवर बेस. एंड इसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ आइवरी शीट्स बीज पेपर्स. बीज इसलिए बिकॉज हमें विंटेज लुक चाहिए था. वी वॉन्टेड इट टू बी ओल्ड एंड रस्टिक. इसके सिवा एक्सेसरीज के लिए वी हैव दीज जूट पेपर्स इन वाइट एज वेल. तो ये वाइट जूट पेपर्स भी होंगे हमारे पास. इसके बाद आई हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स जो कि अलग अलग डिज़ाइंस में हैं. माई फेवरेट वन इज़ दिस वन. एक्सेसरीज के लिए आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी यूजिंग दिस पर्ल वर्क और पर्ल बहुत अच्छा जाता है व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग विंटर. नेक्स्ट आई ऑल्सो हैव दिस जर्नलिंग किट. इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि बहुत सारे स्टिकर्स हैं. ये थोड़ा सा ब्लू थीम पे है. आई एम नॉट गोइंग फॉर ब्लू थीम सो इसको आई वॉन्ट बी यूजिंग. बट अदर देन दिस इट हैज़ वेरी नाइस वॉशी टेप्स एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड वी हैव सम टिकट्स. तो बहुत सारे पेजेस भी हैं हमारे पास. आई लव दिस वन एक्चुअली. दिस वन इज़ माई फेवरेट. के साथ साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी यूजिंग these somewhere. So धीरे धीरे I just start the काम and with this काम I am also going to tell you all about my creative journey as I said already. So when I was a little girl मुझे हमेशा से आर्ट से प्यार था. Not exactly crafting but art.
I was also into dance, but art was literally my passion. So when I was a little girl, मुझे कोई भी गिफ्ट में crayons या ऐसा कुछ देता था तो मतलब he was the best person on this earth, मतलब उसके सिवा मुझसे कोई प्यार नहीं करता. I was that kind of a person. So I particularly remember about one incident जो कि बहुत ही ज़्यादा important है in my art journey, as that was the breakthrough when I got confidence that yes, I am an artist and I love art and I just love doing what it is. एंड द इंसिडेंट वॉज आई वॉज इन क्लास 4th एंड मेरे स्कूल में अनाउंस हुआ था एक आर्ट कॉम्पिटिशन जो कि इंटर स्टेट लेवल था. And the moment my art teacher told me about it, I was really very excited. But सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, राइट. तो वर्स्ट पार्ट वॉज कि आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दैट कॉम्पिटिशन था 6th क्लास के बच्चों का एंड आई वॉज इन 4th, सो मैं तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती थी. But when there is will, there is way. Actually, मेरी art teacher loved me a lot because of my artwork actually, and so she helped me and she talked to the principal to take me to that competition as a 6th class student, and I went there as a 6th class student. एंड बहुत सारे और बच्चे भी गए थे 6th क्लास 8th क्लास के, बट मेरे स्कूल से ओनली आई वॉज द वन जो जीता था उस कंपटीशन में. एंड आई फेल लाइक ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. मतलब मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल ना एकदम एक्सेप्शनल लेवल पे बूस्ट हो गया था. सो नेक्स्ट इंसिडेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ. आई वॉज इन क्लास 8th और कॉम्पिटिशन था द 11th युवा महोत्सव ऑफ लखनऊ. आई पार्टिसिपेटेड इन फेस पेंटिंग एंड मटका पेंटिंग एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉम्पिटिशन में. इन एवरी कॉम्पिटिशन आई वॉन. एंड इवन द थिंग इज़ कि मेरे पेरेंट्स वहाँ जाने के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे, बट माई आर्ट टीचर वॉज लिटरली वेरी डेडिकेटेड. एंड मतलब उनकी वजह से ही जो भी आर्ट मेरी लाइफ में है और एस्थेटिक्स और वॉट एवर इट इज़, वो सारा कुछ द क्रेडिट गोज़ टू हर. शी वेंट आउट ऑफ द वे एंड टॉक टू माई पेरेंट्स, बट दे डिडंट अलाउ. एंड उस कॉम्पिटिशन में एंट्री फीस वगैरह वाली चीज़ें थी. सो my teacher went out of the way and she filled all the entry fees. और 3-4 competition में मैंने पार्ट लिया था, तो she gave every entry fee. and उसके ऊपर से because मैं बाहर जा कर के इन competition में participate कर रही थी, मतलब हर दिन शी गेव मी 50 रुपीज़ और कि बेटा जाओ खर्च कर लेना, enjoy yourself, do the competition, do well and just enjoy. सो इस तरह के बहुत सारे incidences हैं that helped me grow my art. and बस I feel quite privileged and quite happy and blessed to get a teacher like her. एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. Another thing that helped me grow in my art journey was the COVID period. I know it was a hard period, but it was really nice to grow and to just build your skill and sharpen it. तो वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए. एंड आई वॉच हेल लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़. टेक्सचर आर्ट ले लो, मिरर आर्ट ले लो, लिपन वर्क ले लो और मधुबनी और वॉट एवर इट इज़, स्केच इवन, मतलब पोर्ट्रेट्स एंड एवरीथिंग. आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन एवरी बिट ऑफ इट एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की एंड चीज़ें थोड़ी बेटर हुई एंड आई लव इट. सो मेरा जस्ट यही है दैट अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश ज़रूर करती है, बस आपको हारना नहीं है. एंड हियर आई एम डूइंग माई फर्स्ट कमीशन गवर्नमेंट वाला आर्ट वर्क. सो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है. सो कीप ट्राइंग, कीप गोइंग, कीप पेंटिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. ओके, बाय.